So what happened into the operator overloading? So just now we have understood the concept of function overloading. Operator overloading will also work on similar basis, but the thing is that here we are overloading the operators. Okay, and to overload the operator, the concept is very much different. So let's see what is the difference between function overloading and operator overloading and how operator overloading works. So you can redefine or overload most of the built-in operator available in C++. So what are the built-in operator we have? We have different arithmetic operation, right? We have addition, we have subtraction, we have division, we have minus symbol, then we have uh, what mod symbol, we have scope resolution, we have less than symbol which we use for the C out, right? So that is a C out operator. Then we have seen operator, which is a greater than symbol. So all those are different symbols, right? Or different operators. So here in the operator overloading, we'll see that how we can overload. Overload means if there is a, let's say, addition operator. So what addition operator will do is addition operator will add to numeric number. Either it will be integer or it will be a floating point number. It will just add it. Now, if we overload the functionality to work for operator, then what will happen? Let's say we want that it will add to object or to class variable, right? Which is an object. Let's say we want to work with this plus operator to add to object. Then we have to give functionality to it, right? We have to give functionality to it. So about that, we'll see in this particular section. So we can redefine or overload most of the built-in operator available in C++. Thus, a programmer can use operator with user-defined type as well. Overloaded operator are functions with special names. So what is overloaded operators? So overloaded operators are nothing but the functions with having special name. What are the name? The name is nothing but the keyword operator we have to use, followed by the symbol of the operator being defined. So we have to define the function in this way. In the last line that you can see, let's say the operator, we have to write operator and we have to write the symbol and then we have to write the definition. So you can see here the box is the class name. So it is returning the object. It is taking to object. And what plus is doing? It is plus is useful for adding. Or you can make it for minus, plus, whatever is. But for simplicity, we'll say that plus will add to object. That is a functionality of plus. Okay, let's see this in detail. So, what are the overloaded and over the operator which can be overloaded and which cannot be overloaded? So you can see these are different operators that can be overloaded. See, plus, minus, multiplication, division, mod. Then there is a cap. There is a ampersand. There is a pipeline. There is a tilde, exclamatory, comma, equal to, which is assignment operator, less than operator, greater than operator, less than equal to, greater than equal to, plus plus, which is a incremental operator, right? And decremental operator. Then we have this is for the C out and this is for the C in operator. This is for the what conditional a conditional operator. This is also a conditional operator. This is a logical AND. This is logical OR. Plus equal to, minus equal to. So all these are the different operators that could be overloaded. We can overload it. Means they have their own functionality. We give additional functionality to it.
देर आर सम ऑपरेटर विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो कौन कौन सा ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं हो सकता? वी हैव स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो ओवरलोड नहीं हो सकता। वी हैव डॉट एस्ट्रिक ऑपरेटर जो ओवरलोड नहीं हो सकता। वी हैव डॉट ऑपरेटर जो ओवरलोड नहीं हो सकता। और वी हैव क्वेश्चन मार्क एंड परसेंटेज। ये हम लोग कब यूज करते हैं? जब एक लाइन पे हम लोग दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड विल फाइंड आउट द it is working let's say if then else statement. So for that this operator will be used. So ये सब जो ऑपरेटर हैं उनको ओवरलोड नहीं कर सकते, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। बाकी सब ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी आता है कि व्हाट आर द ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। सो these are the operator which cannot be overloaded. Okay, let's see with the help of some example. So okay, let's see some examples related to operator overloading. So first we'll see the this operator which is addition operator, right? Which is a plus operator. तो प्लस ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल। वी हैव अ क्लास, द नेम ऑफ द क्लास इज कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो दो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू को तीसरे ऑब्जेक्ट को दे देंगे और उस तीसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट का जो एडिशन रहेगा वो तीसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सो इसमें देखते हैं कि इस क्लास में है क्या। पहले तो ये देखिए, इस क्लास में दो डेटा हैं एक्स एंड वाई, वो दोनों फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं, मतलब कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्स और वाई को हमने कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया। एक और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, आप देख रहे हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुए, तो ये जस्ट लाइक अ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में कि हमारे पास फंक्शन का नाम तो सेम रहता है बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रहता है, राइट। तो ये भी वैसे ही हुआ। तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड वी हैव अनदर कंस्ट्रक्टर विथ हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट्स। दिख रहा है। तो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट आर्ग्यूमेंट है। एक का नाम है रियल, एक का नाम है इमेजिनरी, IMG। तो रियल पार्ट को x में दे दिए, इमेजिनरी पार्ट को y में दे दिए, ठीक। उसके बाद हम लोग एक ऑपरेटर फंक्शन बनाए। कैसे बनाते हैं ऑपरेटर फंक्शन, तो लिखते हैं ऑपरेटर और ऑपरेटर का सिंबल। सो कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, उस ऑपरेटर का सिंबल। तो प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो प्लस लिख दिए। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑपरेटर प्लस, ठीक। इस ऑपरेटर प्लस में क्या है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप का रहेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा। और ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहे हैं वो कौन से टाइप का रहेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑपरेटर फंक्शन बनाया जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो प्लस का एक फंक्शनैलिटी है जो कि किसी भी न्यूमेरिक को ऐड करता है, बट हम लोग इसको ऐड करवा रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक डिक्लेरेशन यहाँ पर दे दिए, डेफिनेशन नीचे में देखेंगे। उसके बाद एक और फंक्शन है, इसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले कुछ भी लेता नहीं है और कुछ भी रिटर्न भी नहीं करेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या है, हमारे यहाँ
क्लास में दो डेटा मेंबर्स हैं, दो कंस्ट्रक्टर है और दो फंक्शंस हैं, दोनों मेंबर फंक्शन, ठीक है। बट एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑपरेटर लिखेंगे और जो भी सिंबल को हमको ओवरलोड करना है वो लिखेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, that is how it works, right? Here you can see the definition of it. What is the definition? Definition is this particular function belongs to which class? Complex class. तो complex और scope resolution लिख दिए क्योंकि हम लोग इसको outside class define कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसका नाम, so उसका नाम क्या है? ऑपरेटर प्लस, फिर complex C। complex C मतलब कि what is that? What is the meaning of complex C? Complex C means here we are passing the object of which type? Complex type, and we are returning the object of which type? Complex type. Okay, and what we are returning? We are returning like this. So we are taking the value of x from here, adding it with the value of x of this object, as well as we are taking the value of y, and we are adding the value of y with the object of another object of this particular y, means c is y, means object cy, and then we are adding it. So we are adding the x value, we are adding the y value, and then we are returning this particular by making one object complex through this particular complex keyword. So ये क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न कर लेंगे। डिस्प्ले क्या करेगा? डिस्प्ले x और y की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, x लिखेगा, उसके बाद प्लस j और y। सो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हम लोग को लिखना है 2 + 5j। सो 2 क्या हुआ? रियल नंबर हुआ, 5 क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर हुआ। सो इस तरह से लिखते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाया, C1, C2 और C3। C1 ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है। सो ये एक्सप्लिसिट हमने कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को C1 और C2 के लिए। उसके बाद C1 + C2 किया गया है। सो जैसे ही हम देखेंगे कि प्लस का जो ऑपरेटर है उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर समझ जाएगा हम ओवरलोड कर रहे हैं। तो प्लस के ओवरलोडेड डेफिनेशन को वो कॉल करेगा। कौन? कंपाइलर। तो हमारा प्लस का ओवरलोडेड फंक्शन क्या है? ये, इसको कॉल कर लेगा कंपाइलर। इसमें क्या पास करेगा? इसमें पास करेगा एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? C2 ऑब्जेक्ट पास करेगा या C1 ऑब्जेक्ट पास करेगा? वो पास करेगा C2 ऑब्जेक्ट और ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद रिटर्न करेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो डेटा है उसको कहां पर स्टोर कर लेंगे? हम C3 में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद C1 को प्रिंट करवाया यहाँ पर, C1 की वैल्यू को, C2 की वैल्यू को डिस्प्ले कराया है यहाँ पर, और लास्ट में C3 की वैल्यू को डिस्प्ले कराया गया। ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। We'll try to understand it fully with different diagrams. ठीक, चलो। सो इसमें बना क्या है? इसमें 3 ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, हमारा क्या क्या ऑब्जेक्ट है? पहला ऑब्जेक्ट का नाम है C1, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम है C2 और तीसरा ऑब्जेक्ट का नाम है C3। कैसे? ये देखो 3 ऑब्जेक्ट बना, C1, C2 और C3। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं है, तो x और y की वैल्यू को कुछ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो क्या हो जाएगा? x, यहाँ पर x की वैल्यू होगी
और y की वैल्यू होगी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी x और y खाली रहेगा, यहाँ पर भी x और y खाली रहेगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं, राइट। ये कब हुआ, जब हमने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। मैंने बताया था एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी डन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन। यहाँ से चलो, उसके बाद क्या किया हमने, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। देखो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट डाल दिया, दो आर्ग्यूमेंट 2.5 3.5। ये जो कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है, जो दो आर्ग्यूमेंट लिया है, वो किसके किसके थ्रू कॉल हुआ है, किसी के भी थ्रू कॉल नहीं हुआ है। ये रिटर्न क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और किसमें किया हमने, C1 में डाल दिया उस वैल्यू को। तो हमने x की वैल्यू को 2.5 और y की वैल्यू को 3.5 करके C1 में डाल दिया, राइट। तो यहाँ पर हो गया 2.5 और ये हो गया 3.5 C1 के लिए। C2 के लिए क्या हो जाएगा, 4.5 एंड 5.5, 4.5 एंड 5.5, इतना हो गया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, C1 प्लस C2 किया। क्या किया, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। अभी बताओ C1 क्या है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, क्या है। तो C1 क्या है, C1 द टाइप ऑफ C1 इज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप का है, मतलब कि ये कौन सा वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट, वी हैव ऑब्जेक्ट, राइट। अभी ऑब्जेक्ट को हमको ऐड करना है, तो प्लस अकेले नहीं कर सकता, तो हमको ओवरलोड करना पड़ेगा। तो हमने ओवरलोड किया हुआ है प्लस को, कैसे, प्लस को ओवरलोड किया गया है। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और रिटर्न करेगा एक और दूसरा ऑब्जेक्ट, राइट। सो कंपाइलर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर को कैसे लिखेगा, C1 प्लस C2 को कैसे लिखता है कंपाइलर, कन्वर्ट करेगा C1 डॉट ऑपरेटर प्लस C2। देखो ऐसा कन्वर्ट करता है कंपाइलर, समझ में आया। इसको जो हमने C1 प्लस C2 लिखा है यहाँ पे, C1 प्लस C2, उसको इस तरह से कन्वर्ट करेगा कंपाइलर। तो C1 डॉट ऑपरेटर C2, तो क्या होगा, C2 किसको चला गया, C को चला गया, तो एक और ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है C। C2 किसको चला गया, C को। तो x और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, C का जो C2 का होगा। तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया 5.5, गॉट इट। अभी देखो क्या हुआ है, अभी इसके अंदर लिखा है x प्लस C डॉट एक्स। सो x क्या है, x क्या है, किसका x, कौन कॉल कर रहा है, C1 कॉल कर रहा है। तो C1 का x, C1 का x लिए प्लस किए C डॉट एक्स के साथ, मतलब कि क्या होगा हमारा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 7, होगी कि नहीं, इसको और इसको ऐड करो, हो जाएगी 7। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगी, y प्लस सी डॉट वाई, वाई प्लस सी डॉट वाई। तो जो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.5 प्लस 5.5, ये हो जाएगी 9, ठीक। अभी इसी को अंदर डाल के, मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई 7, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई 9। इसको कॉल करके क्या किया गया है, हम लोग कॉल किए हैं कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ है, जैसे यहाँ पर कॉल हुआ था, यहाँ पर हमने पहले वैल्यू डाला, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 9। तो 7 और 9 को हम लोग पास कर दिया किसमें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, रियल को x में डाल रहा है, इमेजिनरी को y में डाल रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर रहा है। तो जो हमने दिया है, 7 को x में डाल दिया, 9 को y में डाल दिया, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो सेव हो जाएगा C3 में। किसमें सेव हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर किसमें सेव हुआ, C3 में सेव हुआ। तो ये चला जाएगा C3 में, x की वैल्यू हो जाएगी 7 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं सी आउट C1 इक्वल टू
और C1 डिस्प्ले कर रहे हैं, तो डिस्प्ले क्या करता है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, किसका, C1 का, क्योंकि C1 कॉल कर रहा है। तो C1 का x और y की वैल्यू क्या है, 2.5, फिर हमने लिया प्लस सिंबल और j, प्लस सिंबल और j, और लिखा y की वैल्यू मतलब 3.5। ये हुआ C1 इक्वल टू, फिर इसके बाद C2 इक्वल टू, ठीक, उसके बाद C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 डॉट डिस्प्ले, तो C2 क्या करेगा, x और y को डिस्प्ले करेगा, बीच में क्या लिखेगा, प्लस j, तो C2 क्या करेगा, 4.5 प्लस j 5.5 ऐसा लिख के प्रिंट करेगा, ठीक। उसके बाद किसको प्रिंट किया गया है, C3 को प्रिंट किया गया है और C3 को डिस्प्ले किया गया है। सो हम आ जाएगा आउटपुट C3 इक्वल टू, और C3 इक्वल टू में क्या चलेगा, C3 में क्या क्या है, 7 है और 9, तो 7 प्लस j 9, ऐसा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या डिस्प्ले होगा आपका आउटपुट में, इस तरह से आपका डिस्प्ले। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी प्लस ऑपरेटर को, किसको, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया। तो जब भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो हमको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना पड़ता, कंपाइलर इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या हुआ, ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया, ऑपरेटर प्लस फंक्शन को हमने कॉल किया। C2 हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट और C1 हो जाएगा हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक, अंडरस्टूड। ये काम कौन करेगा, ये काम है कंपाइलर का, हमको नहीं करना पड़ेगा। सो हमको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, C1 प्लस C2। अब C1 पता है कौन से टाइप का है कंपाइलर को, C2 भी पता है कौन से टाइप का है कंपाइलर को, तो देखेगा प्लस तो इसके लिए बना ही नहीं है, तो हम वो क्या देखेगा, वो क्या खोजेगा, डेफिनेशन खोजेगा। उसको पता है कि डेफिनेशन है प्लस का, उसके साथ अटैच कर देगा इस तरह से, राइट, और हमारा इस तरह से वो आउटपुट आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। बिफोर दैट तो अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर लेते हैं, नहीं तो एक ही लाइन पे प्रिंट होगा ये, ठीक। चलो अभी रन करते हैं इसको। आ गया, तो यहाँ पे लिखा है C1 इक्वल टू 2.5 प्लस j 3.5, C1 इक्वल टू 2.5 प्लस j 3.5, C2 इक्वल टू 4.5 प्लस j 5.5, 4.5 प्लस j 5.5 C2 की वैल्यू, और C3 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस j 9, 7 प्लस j 9। आ गया, तो हमने क्या किया, C1 और C2 को ऐड किया, तो रियल से रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। यही कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसको ऐसे ही ऐड किया जाता है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ, और तीसरे ऑब्जेक्ट में हमने उस डेटा को डाल दिया, ठीक है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। अभी इसी कंसेप्ट को ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सेम कंसेप्ट को हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन के थ्रू सेम कंसेप्ट को फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। ओके, लेट्स सी दिस। हमारा क्लास है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर दो वैल्यू है x और y, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। एक हमने कंस्ट्रक्टर लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है, एक हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो दो वैल्यू को ले रहा है और जो दोनों वैल्यू है उसको x और y को दे रहा है। उसके बाद हमने एक ऑपरेटर फंक्शन बनाया यहाँ पर, बट ये ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है। क्या फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन। इसमें हमने, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो ऑपरेंट लगेंगे, तो हमने दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डाले।
पिछला वाले में 2 आर्गुमेंट डालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक आर्गुमेंट कहाँ से मिल जाएगा, जो हमने डाला हुआ है, और दूसरा कहाँ से मिल जाएगा, जो कॉलिंग किया होगा उस ऑब्जेक्ट को। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, फ्रेंड फंक्शन को विदाउट एनी ऑब्जेक्ट और विदाउट एनी डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। और फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं होता, सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास, सो दिस फंक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास। देन डिस्प्ले का वही काम है, एक्स और वाई को डिस्प्ले करना। अभी प्लस ऑपरेटर का देखते हैं कि इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो इसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट लिया कॉम्प्लेक्स टाइप का, 2 ऑब्जेक्ट का एक्स को ऐड किया, वाई को ऐड किया, और फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया। तो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट को x में और दूसरे आर्ग्यूमेंट को y में डाल देता है, राइट, और रिटर्न क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप करेगा, ठीक। फिर डिस्प्ले क्या करेगा, x और y की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, बीच में क्या लिखेंगे, i प्लस j, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कंसेप्ट अगेन। यहाँ पर भी 3 ऑब्जेक्ट बनाया गया, C1 और C2 और C3 ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया गया है और C1 में डाला गया वैल्यू को, वैसे ही कॉम्प्लेक्स अगेन कॉल किया गया है, C2 में डाला गया है, और फिर उसके बाद C1 और C2 को ऐड किया गया है। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसको किसको दे देगा, C3 को दे देगा। फिर C1 की वैल्यू को प्रिंट किया गया है, C2 की वैल्यू को प्रिंट किया गया है, और C3 की वैल्यू। अभी पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में मेन में देखिएगा, मेन में कोई अंतर नहीं, मेन सेम है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह डिफरेंस आपको लगा होगा, हमने यहाँ पर फ्रेंड यूज किया जो पहले नहीं था। दूसरा, हमने एक ऑब्जेक्ट के जगह में 2 ऑब्जेक्ट यूज किया। उसका रीजन ये है कि जो हमारा मेंबर फंक्शन रहता है उसको हम लोग कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। लेकिन जो हमारा मेंबर फंक्शन नहीं रहता, जैसे ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये क्या हुआ, आउटसाइड क्लास है, तो ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन है। तो इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेटर जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए, इसलिए 2 ऑब्जेक्ट हमने एक्सप्लिसिटली उसमें डाला और दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड किया। ऐड करने के बाद उसको रिटर्न किया, रिटर्न टाइप भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, कॉम्प्लेक्स मतलब ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक। अब देखो ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला वाला तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी इसको ट्राई करते हैं समझने के लिए कि ये कैसे काम। तो पहला लाइन क्या है हमारा, C1 C2 C3 क्रिएट करना। तो हम क्या करेंगे, C1 क्रिएट करेंगे, C2 क्रिएट करेंगे, C3 क्रिएट करेंगे। सभी में x और y की वैल्यू डालना है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास, ये कॉल होगा। बिकॉज देर इज नथिंग इन द डेफिनेशन, इट विल डू नथिंग। इट मीन्स एक्स एंड वाई वैल्यू कुछ भी नहीं, वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वो क्या करेगा, एक को x में डालेगा आर्गुमेंट को, दूसरे आर्गुमेंट को y में डालेगा, और किसको दे देगा, C1 को दे देगा। तो 2.5 को यहाँ पर दे दिया और 3.5 को यहाँ पर दे दिया। वैसे ही दूसरी बार हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बाय 4.5 एंड 5.5 एंड इट विल गिव द वैल्यू टू C2। 4.5 एंड 5.5 एंड इट इज गिविंग द वैल्यू टू C2, ठीक है। C2 को चला गया। उसके बाद हमने क्या किया, C1 प्लस C2 किया। क्या किया, C1 प्लस C2 किया, ठीक है। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो किसको दे देंगे हम लोग, C3 को। तो जैसे ही हम लोग C1 प्लस C2 करेंगे, कंपाइलर देखेगा कि आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं।
बिकॉज दिस ऑपरेटर इज नॉट मेंट फॉर इट, वी हैव मेड इट ओवरलोडेड। हमने एक ओवरलोडेड फंक्शन बनाया है। देखो यहाँ पर ये ओवरलोडिंग फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट को ले रहा है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको कैसे कन्वर्ट करेगा, और डेफिनेटली ये क्या है, फ्रेंड फंक्शन है, तो ये किसी भी क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पर, राइट, बिकॉज इट इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी क्लास। देखो डेफिनेशन में कोई क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो कोई भी क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस, और उसमें क्या डाल देंगे, C1 और C2 डाल देंगे। ठीक, तो C1 कहाँ चला गया, A को, और C2 कहाँ चला गया, B को। कैसे, तो हमारा दो ऑब्जेक्ट बना, A और दूसरा ऑब्जेक्ट बना B, दिख रहा है, A ऑब्जेक्ट बना और B ऑब्जेक्ट बना। A में क्या चला जाएगा, C1 चला जाएगा, तो A में चला गया C1, मतलब C1 की सभी वैल्यू A में चली गई, और C2 की सभी वैल्यू B में चली गई। C2 की क्या वैल्यू है, 4.5 और 5.5। ठीक, इतना हो गया। कब, जब हम कॉल किए और यहाँ पर आया हमारा कंट्रोल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, a प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स किया। a डॉट एक्स क्या है 2.5, b डॉट एक्स क्या है 4.5, इसको ऐड कर लिया तो क्या मिला हमको 7। फिर a डॉट वाई प्लस b डॉट वाई, a डॉट वाई क्या है 3.5 और b डॉट वाई क्या है 5.5, तो हमको क्या मिला 9। इसको हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कैसे, कॉम्प्लेक्स करके। सो कॉम्प्लेक्स से कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो हमने क्या किया, 7 और 9 यहाँ पे पास किया, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर x और y में क्या डाल देगा, वैल्यू को डाल के, और कंस्ट्रक्टर को रिटर्न कर देगा। अब ये रिटर्न किसको किया है, हमको C3 को किया है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 7 और 9 C3 में चला जाएगा। ठीक, अब C1 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर C2 की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर C3 की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं। ठीक, तो C1 में क्या डिस्प्ले होगा, C1 में क्या डिस्प्ले होगा, 2.5 प्लस J 3.5। वी आर कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन, राइट। तो डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, x और y की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है प्लस J लिख के। वैसे ही C2 क्या करेगा, C2 का डिस्प्ले प्रिंट करेगा x की वैल्यू और J की वैल्यू। वैसे ही C3 क्या करेगा, प्रिंट करेगा x की वैल्यू और J की वैल्यू, राइट। सो इस तरह से आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रन करके देखो, रन करने पर आउटपुट सेम आएगा जो हमारा पुराने प्रोग्राम का था। द आउटपुट विल बी द सेम, बट द कंसेप्ट over there and here is different. Over there we are using the operator function inside the class, but now we are using the operator function using friend function, means we are creating a operator function which is not belongs to any class and it is a friend function. So friend function के थ्रू हमने ऑपरेटर फंक्शन बनाया, पिछला वाला नॉर्मल फंक्शन को हमने ऑपरेटर फंक्शन बनाया। तो आपको यही रिमेंबर करना है, जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर बनाए हैं तो दो ऑब्जेक्ट दिए हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, वहां पर दो ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट में काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आपका कॉलिंग ऑफ द फंक्शन के लिए यूज होगा, और यहाँ पर क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है, हम जब कॉल करेंगे तो कोई भी डॉट ऑपरेटर यूज नहीं होगा। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या हुआ था, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर यूज किया गया ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक, तो वही डिफरेंस है यहाँ के कॉलिंग में और यहाँ के कॉलिंग में। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन the operator overloading without the friend function and operator overloading with the friend function. Okay, so actually प्लस का क्या काम है, प्लस का काम है किसी भी इंटीजर वेरिएबल को ऐड करना। अगर ऐसा लिखते हैं x प्लस वाई लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लोटिंग वैल्यू ले लो
और हम कहीं पर भी x प्लस वाई लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है उसकी फंक्शनैलिटी रहती है। क्या फंक्शनैलिटी रहती है? कि वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर सकता है। बट यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लस यूज किया है वो क्या कर रहा है? वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड नहीं कर रहा है, वो दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है नहीं पता। सो कोई भी जो न्यूमेरिक वैल्यू अगर नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा? ओवरलोडेड फंक्शन के लिए देखेगा ओवरलोडेड फंक्शन है क्या, और फंक्शन डेफिनेशन है क्या। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ये एरर देगा। कैसे कैसे देगा एरर, देखते हैं। हम लोग यहाँ पर इन सबको हटा देते हैं, मतलब कि हम ओवरलोड नहीं करते। जब हम लोग ओवरलोड ही नहीं करते तो हमको क्या देगा? एरर देगा। और वो कहाँ पर देगा, कौन सा लाइन पे देगा? यहाँ पर देगा। ठीक है, रन करो, देखो। दिया? कहाँ पर दिया? इसी लाइन पे दिया। C3 इक्वल टू C1 प्लस C2। क्या बोल रहा है? नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस। ऑपरेटर प्लस तो है ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो। हाँ, और हमको दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए। किसके लिए? बाइनरी ऑपरेटर के लिए, जो यहाँ पर दे रहे हैं उनको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास कोई प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर प्लस है ही नहीं, मतलब ऑपरेटर फंक्शन है ही नहीं। ये है कंपाइलर का एरर जो कि हमको पास हो रहा है। ठीक। सो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑपरेटर है जो कि ओवरलोड होता है। आप लोग इफ यू वांट यू कैन सर्च मेनी अदर प्रोग्राम। यूनरी ऑपरेटर जो हमारे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, मतलब कि जैसे हमारे पास मान लो ऑब्जेक्ट है, उसको इंक्रीमेंट करना है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इसको इंक्रीमेंट करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज कि C1 में जो भी होगा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब हम क्या चाहते हैं कि 2.5 को एक इंक्रीमेंट कर दें तो हमारा 3.5 हो गया, और 3.5 को एक इंक्रीमेंट कर दें तो 4.5 हो गया। ये वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए अगर हम लोग C1 प्लस प्लस करते हैं। लेकिन कंपाइलर को तो पता नहीं है, क्योंकि प्लस प्लस किस में काम करता है? न्यूमेरिक वैल्यू में, राइट? या इंक्रीमेंट, या हमारा डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, या आपका प्री इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, या पोस्ट इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। ठीक है, फिर आपका हो गया सी आउट सिंबल, ये वाला जो सी आउट सिंबल है वो। So there are different thing in the operator that can be overloaded. So हमारे पास मैंने एक लिस्ट बताया आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ओवरलोड हो सकते हैं। All these function could be overloaded. Sorry, all these operator could be overloaded. For that we need to create the operator function.